Very good morning, student. Students, as you know, we are studying the chapter 1 Indian economy on the eve of independence. Student, we have completed agriculture sectors, right? Agriculture sector on the eve of independence. We have also completed causes of stagnations of agriculture sector during British rules, right? We also completed industrial sectors, right? Now today we will study about Indian foreign trade under British rules. Students, under British rules, Indian foreign trades was very bad positions because due to the discriminatory tariff policy, right? And condition of foreign trade under due to the discriminatory policy adopted by British government, India become net exporter of raw material and primary product only because these are the tariff free. But if India willing to export finished goods, they levise tax on our finished goods, right? If they impose the tax or tariff on our finished goods, then means it was very costly and very tough to export. So this is the discriminatory approach. And other hand, whatever we import from the Britons, they are tax free. Their finished goods are tax free, or our finished goods are, they impose the tax on them. This is the discriminatory tariff policy. Well, only the raw material are tax free, that they can make finished good and sell back to India or import India and high cost, right? This is the tariff. Composition of export and import show the backwardness of Indian economy. This was the foreign trade. This is totally the, we can say, the trade deficit. Because of trade deficit means whatever we export, this is less than whatever we import. They from Britons means the export is not equal to import, right? Import is greater than export. That is called tariff. That is called trade deficit. And this is the composition of trade, right? And whatever the surplus profit made on and account of foreign trade during British rules was distributed to British administrators as well as British war expenses, or it increased the hunt of British governments, right? Now this is also the some other diagram I have shown. The states of foreign trade during the colonial rules. British monopoly on foreign trade. I have already discussed. Net exporter of raw material. India was net exporter of raw material and importer of final goods. Means net importer of final goods, right? And some other is drain of wealth. Means whatever the profit India got from the Britons, right? Britons use this surplus, export surplus, used to their own benefit, like administrative expenses, like they can import invisible items to India, and also incur expenses of war fought by British, right? This was the foreign trade under the British गवर्नमेंट. नाउ इन हिंदी, हम हिंदी में बता दें एक बार, इंडियन जो फॉरेन ट्रेड था वो कैसा ब्रिटिश के समय था. तो उस समय जो फॉरेन ट्रेड था, उनकी जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, जो टैक्स की पॉलिसी थी, उन्होंने क्या किया कि इंडियन के जो रॉ मटेरियल थे उस पर तो टैक्स फ्री कर दिया उसको, ताकि वो वहाँ जाए और सस्ता माल महंगा, वो जो रॉ मटेरियल से क्या बनता है, फिनिश गुड बनता है. अब फिनिश गुड बन के उन्होंने क्या करा,
इंडिया ने इंपोर्ट करा उनसे तो महंगे दामों पे मिला। तो इसका मतलब क्या है, जो हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल उन पे तो टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन जो हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड उसको उन पे टैक्स लगा दिया। अगर टैक्स लगाएंगे तो कॉस्टली होगा, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, ठीक। लेकिन उन्होंने दूसरी बात, जो हम उनसे इंपोर्ट करते थे उनको उन्होंने वहाँ से टैरिफ फ्री कर, ताकि ब्रिटेन यहाँ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, राइट। दिस इज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। अब कंपोजिशन की बात आती है। कंपोजिशन की बात क्या है, जो भी हम एक्सपोर्ट कंपोजिशन में ये होना चाहिए कि भाई कोई भी ट्रेड हो रहा है तो उसमें जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर होना चाहिए था, लेकिन इसमें बहुत बड़ा गैप था। जो हम उनको एक्सपोर्ट करते थे वो बहुत कम था, लेकिन जो हम इंपोर्ट करते थे वहाँ से मंगाते थे वो बहुत ज़्यादा था। दैट इज़ द कंपोजिशन। इसको ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं, क्योंकि उनकी जो ये सारा उसकी वजह से हुआ, उनकी मोनोपोली, कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड में उनका मोनोपोली था, क्योंकि उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था इंपोर्ट, राइट। तो उन्होंने क्या करा, इंपोर्ट वे लार्ज रेस्ट्रिक्ट टू ब्रिटेन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वजह से, राइट। और सरप्लस प्रॉफिट मेड अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो भी हमारा कभी सरप्लस बनता था फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश रूल में, वो जो उनके जो प्रशासन को अपने वार में, युद्ध में खर्च कर देते थे। इससे उनकी जो है इंडिया में जो और जो है बिजनेस करने की भूख बढ़ने लग गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की, राइट। तो ये जो चार्ट में भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे लिखा ब्रिटिश मोनोपोली ऑन फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे जो उनकी ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली ओवर इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे, क्योंकि टैक्स, एक तो एक्सपोर्ट को जो रॉ मटेरियल था टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन फिनिश गुड पे टैक्स लगा दिया, और जो उनके जो इंपोर्ट करते थे उनको टैक्स फ्री कर दिया। और कई ज़्यादा इन्होंने टैक्स लगा के उन्होंने क्या करा, हमारी ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। जो हम एक्सपोर्ट करेंगे फिनिश गुड को, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया गया, राइट। अब आते हैं नेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट्स ऑफ फाइनल गुड। और इसमें क्या हुआ, एक जो ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल बने। अब वहाँ का जो उनका रास्ता पहले अफ्रीका होकर जाता था, लेकिन उस कैनाल के बनने से ब्रिटेन की दूरियाँ कम हो गई 1869 में, और अब समुद्र के रास्ते अफ्रीका नहीं जाना पड़ता, बल्कि यहाँ सुएज कैनाल के रास्ते जाना पड़ता था। इससे क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था कम आने लग गया था ब्रिटेन, इसलिए उनको रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट करने में ईजी होता था। इंपोर्ट जो है और फाइनल गुड को इंडिया भेजने में आसानी होती थी। इसकी वजह से भी फॉरेन ट्रेड पे नुकसान हुआ। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, जो भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस गेन होता था उसको वो किस में यूज़ करते थे, अपने बेनिफिट में। जैसे अपने प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया, कोई इनविजिबल आइटम को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, और दूसरी चीज़ें हैं अपने युद्धों में खर्चों में इसको यूज़ करते थे ब्रिटिश। होप यू अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट्स। हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वंस अगेन।